डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। आज मैं आप लोगों के कुछ शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले जो हम लेक्चर हम दिया करते थे सारे टीचर, तो वो हम यूज़ करते थे व्हाट्सएप वॉइस मैसेजेस को। कुछ स्टूडेंट्स को शायद थोड़ी सी दिक्कत थी उसको समझने में, क्योंकि वॉइस मैसेज जब तक आपके सामने पेज ओपन ना हो तो दोनों को सामने रखते हुए थोड़े से अंडरस्टैंडिंग में मसला था। अच्छा, एक और मसला जो पेश आ रहा है हमें वो ये कि कुछ बच्चों के पास हमने सोचा कि क्यों ना स्काइप या कोई जूम दूसरे जो सॉफ्टवेयर है उसका सहारा लेके आप तक लेक्चर को पहुंचाया जाए। लेकिन बाद में वो आइडिया कुछ खास काम नहीं आया। उसकी वजह ये थी कि स्काइप के लिए आपको ऑनलाइन होना पड़ता है, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो यूज़ करते हैं व्हाट्सएप मोबाइल डाटा को यूज़ करते हैं, तो उनके पास इतना वो नहीं होता कि वो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हो। तो फिर वो आइडिया कुछ खास नहीं था। उसके बाद फिर सारे फैकल्टी ने बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक सॉफ्टवेयर का लिंक शेयर किया था फैकल्टी व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसको ए पावर सॉफ्टवेयर कहते हैं। सो ये जो ए पावर सॉफ्टवेयर है, इसमें हम वीडियो बना के पूरा जो कुछ भी हमारे सामने लेक्चर हो या कोई पीडीएफ फाइल हो या कोई पावर पॉइंट्स हो, उनके स्लाइड्स हम आप तक पहुंचा सकते हैं। उनको बाकायदा तौर पर उसमें हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। सो आज के बाद यानी फ्रॉम टुडेज ऑनवर्ड we will be talking, we will be delivering our lectures on the A-Power software. So I think this will be quite helpful for you guys to understand and grip and to have understanding of your lectures. Meanwhile, you will be able to interact with me, and if you have any problem in understanding anything, so I'll be at your service. So as you know that we have started our lectures, the last time we have talked about the reduction reactions. We have talked about various reducing agents which are capable of reducing selectively. So today I want to show you something. I will show you this PDF file. You know, this is the Newman book. You already have this, and you can see here this is the page number 25. So page number 25 of the Newman book, Robert and Newman book. You have already this book. So on this page, you can see that the various type of the reduction reactions have been given. In these type of the reduction reaction, you can see that they have reduced somewhere they have reduced you can see here, you can see the triple bond has been reduced to the double bond. Somewhere they have reduced the ketones and aldehydes. Somewhere they are going to reduce the carboxylic acids or their derivatives, and somewhere they are reducing this nitrile group or this nitro group. Similarly, this double bond into the single bond, I mean alkenes into alkanes, or here you can see that alcohol has been changed into other alkyl groups. Similarly, aldehyde have been changed into alcohols. So these are all the kind of the reactions which involve specific type of the reducing agents. Now my point is that I have a question for you, and that question is that if we have a number of the sites which will be reduced, so which are capable of reductions, so then my question is that what particular
reagents or particular reducing agents we need to reduce a particular size. For instance, if I can say that somewhere if you have a double bond as well as you have the carbonyl group. So now if you are using a strong reducing agent, that reducing agent will be able to reduce both the double bond or the carbonyl group. But if you are interested only in reducing the double bond, or you are interested in reducing only the carbonyl group, then of course you need to have a specific type of the reducing agents. So that's why we need to talk about the various kind of the reducing agents in detail and their mechanism. So here you will be able to understand each and every reaction. I think this you will have no problem now from here on that every reaction has been given, and we will be able to draw the mechanism for that, and we will be able to discuss each and every step of that with this A-Power software. You can, before starting this reactions, I can tell you that you can also use that another book, that is Jerry March book, chapter number 19 of the Jerry March book. So जो जेरी मार्च का चैप्टर नंबर 19 है, या फिर रॉबर्ट एंड न्यूमैन का जो चैप्टर नंबर 17 है, ये इन दोनों में से अगर आप लोग याद करें, क्योंकि कॉमन चीजें हैं, सो असल जो टारगेट है आपका, जो आपका कोर्स कंटेंट है, वो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स. सो इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है. ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर उसमें भी कोई चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको हम दोबारा कई बार हम उसको रिपीट कर सकते हैं. उसको हम बार बार, जब तक हमें आप लोगों को समझ ना आए तब तक मैं ये रिपीट करता रहूंगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि हमारा मकसद आपको पढ़ाना नहीं बल्कि सिखाना है. सो जब सिखाने का जज्बा है तो उसमें एक बार क्या, दो बार क्या, हम बार बार उसी चीज को दोहरा सकते हैं और उस पर बात कर सकते हैं. सो जहां कहीं आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग ओपनली और ऑनेस्टली आप जरूर बताएं मुझे. लैंग्वेज की जहां तक बात है, कुछ जगहों पे कुछ बच्चों को शायद मसला है इंग्लिश में, सो उसमें हम ये कर सकते हैं कि मैं कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में पैरेलल चलता हूँ, मैं दोनों साथ साथ यूज करता हूँ. सो क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से इंग्लिश में आपको बताना ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, लेकिन जहाँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ना हो वहाँ पे हम दूसरी चीजों को भूल जाएंगे. हमारी कोशिश प्रायोरिटी यही होगी कि जो जिस जबान में आपको अच्छी सी समझ में आ जाए उसी जबान को हम अपनाएंगे. सो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं. सो आप चैप्टर नंबर 19 चाहे उसका जेरी मार्च का यूज करें, वो एक एक रिएक्शन, एक एक चीज का उन्होंने डिटेल में आपको बताया हुआ है, उसको आप पढ़ें और इसमें कोई चीज समझ में ना आए. और ये चैप्टर नंबर 17 है रॉबर्ट एंड न्यूमैन का. सो इसको भी आप काफी ज्यादा रिएक्शन हम इसमें से पढ़ रहे हैं. जो असल टारगेट है हमारा, आप लोगों को घबराना इसलिए नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा असल टारगेट है वो ये है कि हमने कोर्स कंटेंट के हवाले से चलना है. कोर्स कंटेंट में सपोज कोई रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड, ठीक है. तो अब रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए कितने सारे रिड्यूसिंग एजेंट मौजूद हैं, एक ये बात. दूसरी बात, कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन है, उसमें कौन कौन से स्ट्रॉन्ग, वीक और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास है, उनके नाम और उनके मैकेनिज्म, ये है हमारा टारगेट. सो इसमें हम देखेंगे कि एक वन बाय वन एक एक रिएक्शन और उनका मैकेनिज्म हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे. सो ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज फिर हम इसी पे बात करेंगे, जिसमें क्योंकि कुछ बच्चों को शायद उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसको दोबारा आपको बताया जाए. सो हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड की, कि ऐसे कौन से
रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं हमारे पास जो रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड कर सकते हैं। तो अगर आप देखें रिडक्शन के लिए जाहिर हाइड्रोजन से होती है और डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन यूज होता है इन प्रेजेंस ऑफ कई कैटलिस्ट हो सकते हैं, जिसमें निकल भी हो सकता है, उसमें पैलेडियम या फिर रेने निकल होता है। सो इसमें अगर हम सिंपल निकल को यूज करते हैं उसके लिए ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे हमें जाना पड़ता है। अगर हम पैलेडियम जो कि हाईली एक्सपेंसिव भी और टॉक्सिक भी है, और दूसरा अगर हम निकल से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर हमें रेने निकल की तरफ जाना पड़ता है, जो कि इसी रिएक्शन को फिर मेरे ख्याल में 80 या 100 के अराउंड ये डिग्री सेंटीग्रेड भी इस रिएक्शन को कर सकता है। सो इसका जरा मैकेनिज्म आप देखें कि इससे पहले भी इस पे बात हो चुकी है। आप देखिए जरा यहाँ पे देखें, इसमें हाइड्रोजन ऊपर से आ रहा है और ये एब्जॉर्ब होता है। जो ये ऊपर वाला हाइड्रोजन होता है ये निकल के साथ, असल में निकल की सरफेस पे इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। सो अल्कीन ऊपर से आ जाता है, ठीक है। सो आप यूं समझे कि नीचे मैं निकल डाल रहा हूँ, ऐसे निकल फ्लैट, और निकल के ऊपर हाइड्रोजन रखा हुआ है, क्योंकि निकल में छोटे इंटरस्टेशियल स्पेसेस होते हैं, छोटे छोटे, जिसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ट्रैप होते हैं। अब ऊपर से जब ये अल्कीन का डबल बॉन्ड आता है तो क्या होता है कि अल्कीन का डबल बॉन्ड रिड्यूस होके इस तरह इस सिंगल बॉन्ड में इस तरह से आ जाता है। सो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि किस तरीके से ये यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ये इसमें से डबल बॉन्ड किस तरीके से सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रहा है और हाइड्रोजन की ट्रैपिंग हो रही है। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन मैं अब बता रहा था आपको कि ये जो हाइड्रोजन है ऊपर से, ये ट्रैप ऊपर से आता है, उससे निकल के सरफेस पे मौजूद होता है। तो वो निकल के इंटरस्टेशियल स्पेसेस होते हैं, उसमें छोटे छोटे हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल ट्रैप होते हैं और वो एब्जॉर्ब कर देते हैं, और इसी तरीके से इसकी रिडक्शन हो जाती है और डबल बॉन्ड चेंज हो जाता है इनटू सिंगल बॉन्ड। सिमिलरली आप नीचे भी देख सकते हैं कि नाइट्राइल ग्रुप है C++N यहाँ पे। सो इसमें भी क्या है कि हाइड्रोजन ऊपर से रिड्यूस्ड हो रहा है। सो इसमें अगर हम 2 इक्विवेलेंट्स डालें, ये देखिए आप, ये एक इक्विवेलेंट हो गया, ये दूसरा इक्विवेलेंट। सो अगर 2 इक्विवेलेंट हम हाइड्रोजन की यूज करेंगे तो ये डायरेक्टली चेंज कर देगा इनटू सिंगल बॉन्ड C++। सो ये अमीन बना रहा है, देखिए अमीन है। अब ये क्या है, CH3NH2 अमीन में चेंज हो गया। तो नाइट्राइल आपका चेंज हो गया अमीन में। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, अगर आप थोड़ा नीचे आ जाए इसी में, आप देखिए जरा नीचे आके, इसी में आप देखिए नीचे इस तरह से इन्होंने रिएक्शन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन मेटल कैटलिस्ट लिखा हुआ है। तो मेटल जाहिर है अब निकल ही होता है या पैलेडियम हो सकता है। सो उसकी मौजूदगी में क्या होगा कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड जो होता है वो चेंज हो जाता है इनटू सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे आप एक सवाल बन सकता है कि अगर हम ट्रिपल बॉन्ड हो, जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये इसमें यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड है ये, ठीक है जी, ये अब ट्रिपल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड चेंज हो रहा है किस चीज में, ये चेंज हो रहा है डबल बॉन्ड में। तो यहाँ पे ये भी मुमकिन था कि ये ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला, ये डबल बॉन्ड के साथ साथ ये डबल बॉन्ड मजीद फिर सिंगल बॉन्ड में जा सकता है अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें। सो यहाँ पे इंटेंशन ये हो कि अगर हम इसको रोकना चाहे डबल बॉन्ड के ऊपर, सो कौन सा ऐसा कैटलिस्ट होगा जो हमें डबल बॉन्ड पे रोक दे और वो मजीद ट्रिपल बॉन्ड तक ना जाए। सो यहाँ पे इसका क्या आंसर हो सकता है कि अगर हम रिडक्शन करना चाहे ट्रिपल बॉन्ड की और उसको हम रोकना चाहे सिर्फ डबल बॉन्ड पे, उसको ना जाने दे सिंगल बॉन्ड तक। इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लेंडलार कैटलिस्ट के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे कि जो क्वेनुलीन और क्वेनुलीन की मौजूदगी में जो रिडक्शन होती थी, जिसकी वजह से पॉइजनिंग होती थी कैटलिस्ट की, और वो मजीद कैटलिस्ट जो है उसको मजीद
हाइड्रोजन उनकी रिडक्शन नहीं होने देता, तो वो रुक जाता था किस पे, डबल बॉन्ड पे। तो उस पर भी हम अभी बात कर लेते हैं। पहले इसमें जरा नीचे आ जाए और ये देखे जरा कि मेटल हाइड्राइड का मैकेनिज्म किस तरह, तो कौन से ऐसे दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि रिडक्शन कर सकते हैं, which are capable of reduction. So what are the different type of the reducing agents we have, and how will we categorize those reducing agents? So there are a number of reducing agents, I can tell you, which are capable of bringing about a specific function. मुख्तलिफ तरह के रिड्यूसिंग एजेंट्स मौजूद हैं हमारे पास जो कि एक खास तरह के रिडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, एक खास तरह के फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करते हैं। सो हमें ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट्स चाहिए कि हम उसमें से अपने डिजायर्ड, अपने जो हमारी जो पसंदीदा, जो हमारी ज़रूरत होती है, जिस फंक्शनल ग्रुप की रिडक्शन हमें चाहिए होती है, वो उसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को ही रिड्यूस करके दूसरों को छोड़ दे। सो ऐसे कौन कौन से हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो अवेलेबल है। पहली बात अगर हम करें, एक तो ये बात भी, इस बात से हट के मैंने एक और बात भी आपको बताई थी, वो ये बताई थी कि कोई भी चीज जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है उतना कम वो सेलेक्टिव होता है। द मोर एन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इज रिएक्टिव or strong, the less it will be selective. The less it will be reactive, the more it will be selective. So ये एक क्राइटेरिया है कि जितना ज्यादा कोई रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा उतना कम वो सेलेक्टिव होगा, और जितना वो कम रिड्यूसिंग होगा उतना ही वो ज्यादा सेलेक्टिंग होगा। तो अगर हम मुआवजा करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, so we can say that lithium aluminum hydride is far more stronger reducing agent than sodium borohydride. So it means that sodium borohydride is weak reducing, mild reducing agent, not weak but mild reducing agent. So what do you mean by mild reducing agent? वो reducing agents जो कि reactivity में medium होता है, उसकी medium reactivity होती है। इसी तरीके से अगर आप देखें BH3 भी एक इसकी रिड्यूसिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं है जितना पहले दो के हैं। सो अगर हम फिर बात करें, जितना ज्यादा हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लेके आ रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं कि ये देखिए, इस वाली चीज को जरा देखिए एक लम्हे के लिए, हमने क्या किया है कि अगर आप और करें इस चीज को, ये है, ये क्या चीज है, ये क्या है, सॉरी, जो सवाल था आपसे वो ये कि ये जो ये वाली जो चीज है, ये क्या चीज है, देखिए, लिथियम ट्राईब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम ट्राईब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो हुआ क्या है इसमें, अगर आप गौर करें तो इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही था ये शुरू में। सो फिर इसमें क्या चीज ऐसे हो गई कि जिससे ये कंपाउंड बना, इसमें सब्स्टिट्यूशन हो गया सिंपल। कहाँ पे, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जो 4 हाइड्रोजन थे उसमें से 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए ये जो ट्राईब्यूटॉक्सी ग्रुप है, ट्राईब्यूटॉक्सी। सो ट्रेस ब्यूटॉक्सी ग्रुप के साथ इसकी क्या हो गई, सब्स्टिट्यूशन हो गई, और सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में ये 3 जो ट्राईब्यूटॉक्सी ग्रुप हैं ये आ गए हैं हाइड्रोजन को, हाइड्राइड को रिप्लेस करते हुए। सो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि इसमें वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, अब ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। लेकिन जितना ज्यादा ये वीक रिड्यूसिंग हो गया उतना ही ये ज्यादा सेलेक्टिव हो गया।
आई थिंक मेरा पॉइंट जो है वो शायद आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था, उसकी जगह पे ये ट्राइब्यूटॉक्सी ग्रुप जो आ गया है 3, इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, 3 हाइड्राइड को रिप्लेस करके उसकी जगह पे ये ब्यूटॉक्सी ग्रुप आ गया है, ट्राइब्यूटॉक्सी ग्रुप। सो जो ट्रेस ट्राइब्यूटॉक्सी ग्रुप, इसकी वजह से अब क्या है कि इसकी रिएक्टिविटी में कमी आ गई। जितना ज्यादा रिएक्टिविटी में कमी आ गई उतनी ही ज्यादा इसकी सेलेक्टिविटी बढ़ गई। तो यही वजह है कि एक स्पेसिफिक रिडक्शन रिएक्शन के लिए हम इस वाले ग्रुप को यूज करते हैं। दूसरा है आपके कहीं कहीं आपको 3 की जगह पे आप देखेंगे कि आइसोब्यूटाइल डाई आइसोब्यूटाइल, इस ग्रुप के साथ भी इसको रिप्लेस किया जा सकता है, एल्यूमिनियम डाई आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड। सो ये डिपेंड करता है लिथियम। देखिए अच्छा, जो लिथियम आपको ऑलरेडी पता ही है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो लिथियम और 4 एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो LiAH4 में जो बॉन्डिंग है दैट इज दी आयोनिक बॉन्डिंग। सो ये जो बॉन्डिंग है आप देख रहे हैं कि ये लिथियम और ये वाला जो है इस वाले ग्रुप के साथ, इस पूरे ग्रुप के साथ ये वाला, ये पूरा ये दो जो ग्रुप है ये आपस में ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं। सो आयोनिक बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होता है, एक आयोनिक इंटरेक्शन होती है, डेवलप हो जाती है इन दो के बीच में। सो अब अगर हम सिलेक्टिविटी बढ़ाना चाहे तो हम क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम का ये वाला और ये वाला जो हाइड्राइड था उसको रिप्लेस किया है हमने ब्यूटॉक्सी ग्रुप के साथ। आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप। सो आइसोब्यूटॉक्सी ग्रुप के साथ हमने क्या किया है कि इसको रिप्लेस कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इसकी ओवरऑल रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी में इजाफा हुआ है और रिएक्टिविटी में कमी वाक़या हुई है। ये भी किसी हद तक हम कह सकते हैं कि वीक है, इसको कहते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो ये डाई आइसोब्यूटाइल है, वो ट्राई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। डिपेंड करता है कि आपका रिएक्टेंट कौन सा है, किस चीज के साथ आपने इसको रिएक्ट कर देना है। सो ये डिपेंड करता है, उसी के मुताबिक हम फिर क्या करते हैं, इसके रिएक्शन करते हैं हम इसको। इसमें कि जो ऊपर अगर आप लोग देखें सोडियम बोरोहाइड्राइड में देखें तो सोडियम बोरोहाइड्राइड में क्या है कि एक BH4 है और दूसरी साइड पे सोडियम है, यानी सोडियम और BH4 NaBH4। सो सोडियम और BH4 के दरमियान आयोनिक बॉन्ड है। आप देख रहे हैं कि दोनों में किस तरीके से ये आयोनिक बॉन्ड ये पाया जाता है, ये क्या कर रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। सो ये आयोनिक बॉन्ड है यहाँ पे और दूसरी साइड पे देखिए BH4। अब BH4 और सोडियम के बीच में आयोनिक बॉन्ड और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन अगर हम इन हाइड्राइड्स को रिप्लेस करें दूसरे ग्रुप्स के साथ तो ये चेंज हो जाएगा, उसमें ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा और मोर सेलेक्टिव होता जाएगा। इसी तरीके से अगर आप नीचे देखें जरा BH3 को जरा देखें, सो BH3 में अगर आप लोग गौर करें तो ये जो BH3 है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्योंकि बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, बोरॉन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। सो आमतौर और ये इसका जो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनको मजीद 2 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बोरॉन है ये वाला, ये बोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और ये जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है सो ये किसी भी दूसरे एटम के साथ या ग्रुप ऑफ एटम के साथ एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से इसका जो ऑक्टेट यानी आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो
कोई भी ऐसा कंपाउंड कि जिसमें जो सेंट्रल एटम होता है, जिसमें BH3 में सेंट्रल एटम क्या है, बोरॉन है, तो बोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। सो आउटर मोस्ट शेल में को कंप्लीट करने के लिए जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, सो ये तभी जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। सो ऐसे कंपाउंड जिसका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स कहलाते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को हम लेविस एसिड्स कहते हैं। जबकि वो सारे कंपाउंड के जिसमें लोन पेयर पाए जाते हैं और वो लोन पेयर देने की सलाहियत रखते हो और वो दे भी देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं लेविस बेसिस, जिस तरह अमोनिया है। अब अमोनिया में NH3 है, अगर आप लोग गौर करें, सो NH3 में क्या है कि NH3 का NH3 में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर जो वो है क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर वो दे सकते हैं किसी को भी। सो ऐसे जब वो लोन पेयर देगा नाइट्रोजन NH3, ये जो NH3 आप देखते हैं कि अमोनिया का NH3, सो NH3 में ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर ये दे सकता है, ये वाला लोन पेयर, ये लोन पेयर ये आराम के साथ ये दे सकता है BH3 को। सो इस सूरत में हम इसको इंडिकेट करते हैं एक एरो के साथ, जिसमें जो एरो होता है वो दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम दी लेविस बेस टुवर्ड्स दी, ये लेविस बेस कहलाता है। और ये लेविस बेस से जाके ये इसको हम कहते हैं लेविस एसिड्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। सो लेविस एसिड की तरफ ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करता है। यहाँ पे अगर आप गौर करें, जो BH4 होता है, BH4 भी, उसमें भी एक हाइड्रोजन जो होता है वो उसकी डिफिशियंसी को पूरा करता है, क्योंकि हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन पेयर इन BH4 वो क्या करता है, एक्ट करता है एज अ हाइड्राइड तो एक लेविस बेस के तौर पर एक काम करता है। और BH3 अगेन आप जानते हैं कि लेविस एसिड है। सो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये क्या चीज है, ये है डाइबोरेन, ये वाला, दिस इज नाउ डाइबोरेन। तो ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को वाजे बना के दिखा दूं एक दफा। तो आप लोग देखें जरा इसको, अगर हम इसको थोड़ा सा इसको टेक्स्ट साइज को कम करते हैं और इसमें हम ये बॉन्ड है। सो अब देखिए जरा, सॉरी अभी कम नहीं हुआ है, इसको थोड़ा हम कम करने की कोशिश करते हैं, इसको मिटाते हैं और इसको थोड़ा सा इसका हम साइज कम कर लेते हैं, इसको मजीद कम कर सकते हैं आप। सो अगर हम देखें इसमें इस बार अभी कम नहीं हुआ है। सो अगर आप लोग इसको देखें BH4 को, ये एक लिहाज से ये वाला जो है ये एक BH3 है, और ये दूसरा BH3 कहाँ से आया, ये वाला BH3 है। सो 2 BH3 है इसमें, एक ये वाला BH3 है, दूसरा ये वाला BH3 है। ये दोनों आपस में मिलके क्या बना रहा है, एक ब्रिज बना रहा है, और ये बीच का जो हाइड्रोजन है ये एक ब्रिज बना रहा है। इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं इसको ड्रॉ करने की, किस तरीके से हम इसको बनाएं। सो आप लोग यहाँ पे आप देखें कि इसमें BH3 है, बोरॉन है। सो बोरॉन में क्या है, ये 3 हाइड्रोजन के साथ ये बोरॉन अटैच होता है। इसके पास 3 हाइड्राइड होते हैं, एक हाइड्रोजन इस साइड पे और यहाँ पे ऐसे। हम इसको ऐसे बना सकते हैं।
दूसरी साइड पे दूसरा बोरॉन भी होगा, उसका भी BH3 होगा। तो BH3 का मतलब उसका भी यही होगा कि उसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे ऐसे। सो अब क्या है कि यहाँ पे इसमें हम एक हाइड्रोजन ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे। सो अब इसको जरा मिटाएं एक लम्हे के लिए। और सॉरी, सो अगर हम BH3 को देखें, जरा B2H6 को देखें, सो ये B2H6 है ये वाला। इस B2H6 को अगर हम बनाए तो ये कुछ यूं होगा कि ये 2 BH3 यूनिट से मिलके बना है, 2 BH3 यूनिट मिलके इसको बना रहे। और कैसे बना रहे हैं ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इस डायग्राम में कि एक ये BH3 है और एक दूसरा ये वाला BH3 है। इसको मैंने यहाँ पे साफ बनाने की कोशिश की है। अगर हम 2 BH3 यूनिट्स को ऐसे अलग अलग लेके तो हम इसको कुछ यूं लिख सकते हैं क्या, BH3, एक ये BH3 हो गया, दूसरा BH3 ये हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं, किस बॉन्ड के थ्रू ही जुड़े हैं। सो हुआ ये है कि ये जो हाइड्रोजन है इस वाली BH2 का, ये जो हाइड्रोजन है ये वाला ये, और ये क्या कर रहा है कि ये बॉन्ड बना रहा है ऐसे, ये बॉन्ड बना रहा है इसके साथ। सो डॉटेड लाइन के साथ ये हमने शो किया है, ये बॉन्ड आप देख सकते हैं। दूसरे साइड पे ये जो हाइड्रोजन जो कि इसका है, ये बॉन्ड बना रहा है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये खींचे जाते हैं इसके थ्रू यहाँ तक। सो अब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये खींचे जाते हैं B की तरफ, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये खींचे जाते हैं H की तरफ। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन जो बीच वाले हैं, ये दोनों साइड पे जा रहे हैं और ये ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। इस वजह से इसको ब्रिज हाइड्रोजन कहते हैं इसको। अगर आप देखिए इन 2 हाइड्रोजन को, ये वाला हाइड्रोजन और ये दोनों एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। सो इस वजह से ये B2H6 कहलाता है ये मॉलिक्यूल। जब भी हम इसके रिएक्शन पढ़ेंगे, हम इसका एक मोनोमर यानी BH3 पढ़ेंगे। B2H6 का मतलब ये है कि ये 2 BH3 से बना है। सो इसको हम BH3 ही तस्वर करेंगे क्योंकि ये डाइमराइज हुआ है आपस में। 2 जो बनाना बॉन्डिंग जिसको कहते हैं ना, वो इधर अप्लाई हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि ये 2 बॉन्डिंग, ये जो ऊपर है और नीचे है, इन्होंने एक ब्रिजिंग करके इसको एक ऑक्टेट, इसने इसके ऑक्टेट मुकम्मल करने की कोशिश की और इसने इसकी ऑक्टेट को मुकम्मल करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से B2H6 हमें एक स्टेबल मॉलिक्यूल जो कि एक हमें देखने को मिलता है। अब हम जरा इसको देखते हैं नीचे जाके कि किस तरीके से ये दूसरे इसके कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि इसको हम मजीद डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। सो आप जरा नीचे देखे इसका मैकेनिज्म किस तरह होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का या BH3 का किस तरीके से कार्बोनाइल ग्रुप को अटैक करते होंगे। अगर हम सिंगल बॉन्ड के लिहाज से देखें तो आपको ये नजर आ जाएगा कि एल्यूमिनियम और हाइड्राइड का जो बॉन्ड है, तो एल्यूमिनियम कहाँ पे लगेगा, कार्बोनाइल ग्रुप में, और हाइड्राइड जो है वो किस साइड पे जाएगा। सो अगर हम सारे बजाय इसके कि हम सारे वो शो करें, हमने एक बॉन्ड को शो किया है यहाँ पे इस बुक में, एक बॉन्ड को इन्होंने शो किया हुआ है जो कि दिखा रहे हैं आप देखें। इसमें मजीद भी आपको पता ही है, इसमें मजीद भी यहाँ पे हाइड्राइड लगे होंगे ऐसे, मजीद हाइड्राइड इसके साथ होंगे ना, लेकिन हम क्योंकि एक को शो कर रहे हैं तो इस वजह से हम ये देखना चाहते हैं कि वो एक हाइड्राइड जो है वो कैसे जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसको रिड्यूस कर रहा है। सो अब यहाँ पे देखें कि हाइड्राइड का एल्यूमिनियम हाइड्राइड बॉन्ड का, ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड बॉन्ड है ये पूरा,
इसका जो हाइड्राइड है वो अटैक करता है कार्बन के ऊपर, कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के ऊपर अटैक करता है, और ऑक्सीजन जो O नेगेटिव बन जाता है उसके साथ ये एल्यूमिनियम अटैच हो जाता है। सो हमें इस तरह का बॉन्डिंग, इस तरह का मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला मॉलिक्यूल कि जहाँ पे क्या है कि हाइड्राइड अटैक हुआ है कार्बन के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर एल्यूमिनियम लगा हुआ है। सो ये एक इंटरमीडिएट बनाता है ऐसे। तो इस रिएक्शंस को आप मजीद आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मजीद चीज आप इसके साथ लगा सकते हैं। सो ये इसका मैकेनिज्म होगा कि किस तरीके से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करता है। यहाँ पे जरा आप देखें नीचे मुख्तलिफ एक लिस्ट दिया हुआ है मुख्तलिफ कंपाउंड्स का कि जो कि रिड्यूस हो रहे हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में। जिस तरह यहाँ पे आप देखें कि एक कीटोन है, ये एक कीटोन है जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मैं पहले बता चुका हूँ। वो क्या करता है कि इसको कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में चेंज करता है। सो इसमें कोई सेलेक्टिविटी नहीं है, बल्कि हमें डायरेक्टली एक प्रोडक्ट मिलेगा जो कि ये अल्कोहल है। सो इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप देख सकते हैं कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और ये रिड्यूस करता है इस कार्बोनाइल को। अब मुझे ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसमें एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो बॉन्ड होता है, हाइड्राइड यहाँ पे इसके साथ लग जाता है इस कार्बन के साथ, और एल्यूमिनियम इसके साथ लग जाता है जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से एक इंटरमीडिएट बना के 2-3 स्टेप के बाद वो रिड्यूस हो जाता है एल्यूमिनियम इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल। इसी तरीके से सोडियम बोरोहाइड्राइड का सेम मैकेनिज्म होगा जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वहाँ पे जो लिथियम लगा हुआ था, यहाँ पे सोडियम है, उसको स्टेबलाइज वो आयोनिक बॉन्ड बनाया हुआ इन्होंने। दूसरी बात ये कि दूसरा फर्क इसमें यह है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम था, यहाँ पे बोरॉन है, बोरॉन होगा, BH4 होगा जो कि बोरॉन अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तीसरा जो रिएक्शन है आप देख सकते हैं कि इसमें B2H6, सो B2H6 का रिएक्शन हो रहा है, किसके साथ हो रहा है ये आप देखिए इधर जरा कि ये रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ये कीटोन है और इसका रिएक्शन हो रहा है B2H6 के साथ। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि B2H6 में से हम BH3 लेंगे क्योंकि B2H6 एक डायमर है BH3 का। सो जो रिएक्शन करेगा वो BH3 ही करेगा, ठीक है, क्योंकि इनके दो BH3 मिलके ही तो B2H6 बनाते हैं ना। तो चूंकि B2H6 का बॉन्ड बहुत वीक होता है, वो टूट जाते हैं BH3 में, और वो BH3 आराम के साथ वो उसी तरह का रिडक्शन करता है जिस तरह हमने ऊपर वाले यहाँ पे हमने देखा ना, यहाँ पे ये जो आपने यहाँ पे देखा था कि इस वाले रिएक्शन में कि ये जो चीज मैं थोड़ा वाज़ेह बना दूं इसको दोबारा, यहाँ पे आपने देखा था कि इस जगह पे कि एल्यूमिनियम और हाइड्राइड, ये एल्यूमिनियम और उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था। इन्होंने कैसे करना था कि हाइड्राइड लग जाना था कार्बन के ऊपर और एल्यूमिनियम लगना था किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। इसी को अगर मैं बना दूं तो सेम इसमें मेरे पास क्या होगा, BH3 में जस्ट सिर्फ इतना होगा कि जो एल्यूमिनियम है इसकी जगह पे आप बोरॉन लगा दें, इसकी जगह पे हाइड्राइड लगा दें, दैट्स इट, और बाकी बोरॉन के साथ 2 हाइड्रोजन आसपास लगा दें। कैसे करेंगे आप देखिए, ऐसे आप इसको मिटा दें और इसकी जगह पे आप यहाँ पे इस जगह पे अगर मैं कार्बोनाइल बना सकूं यहाँ पे कि एक कार्बोनाइल ग्रुप हम बना दें, और एक मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप क्या करता है कि इसके ऊपर जब हम BH3 लगा देंगे, तो ये BH3 यहाँ पे आप देखें कि ये ऊपर जो BH3 है ये वाला, सॉरी तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर जो
BH3 है, BH3 यहाँ पे ये वाला, ये हाइड्राइड क्या कर रहा है, हाइड्राइड ये आ रहा है और ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ लग रहा है. ऑन द अदर साइड यू कैन सी दैट दिस बोरॉन इज नाउ नॉट बोरॉन ओनली बट BH2 इज नाउ अटैचिंग टू दिस ऑक्सीजन. सो ये इस ऑक्सीजन के साथ लग रहा है. सो बोरॉन ऑक्सीजन के साथ लग रहा है और हाइड्राइड जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रखता है. तो ये मैकेनिज्म है उसका BH3 का, कि जब BH3 कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है तो वो फिर किस तरीके से वो अटैच हो जाता है, इसको हम ऐसे ही देखेंगे. थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं, उसमें हम मजीद कुछ रिएक्शन देखते हैं इसी के. अच्छा जी, आप आ जाए नीचे ये. सो इस तरीके से आपने ये देखा कि जो B2H6 है, B2H6 का B और H बॉन्ड होगा. H जो होगा वो कार्बन की तरफ होगा और BH2 जो होगा वो लग जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जो कि होगा एक कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल. सो डिपेंड करता है, अगर आप यहाँ से आपने स्टार्ट लिया है कीटोन से, तो वो जो भी कीटोन होगा, जो भी R1 R2 जो भी होंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको अल्कोहल मिलेगा. अब तीसरे जो लास्ट रिएक्शन है इसी में, इसी रो में आप देख सकते हैं कि एक कीटोन को रिएक्ट किया गया है ट्राई आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप के साथ. सो इसमें आपने देखा है कि एल्यूमिनियम का आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूशन की है, जिसमें 3 हाइड्रोजन को उन्होंने रिप्लेस करके उसकी जगह पे आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप आ गया है, ट्राई आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप आ गया है. और ये ट्राई आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप इसको मजीद सेलेक्टिव बना देता है, जिसकी वजह से अब क्या होता है कि ये फिर भी इसको रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में. लेकिन जो कुछ दूसरे रिएक्शंस है उसमें हम देखेंगे कि इसकी यही सेलेक्टिविटी इसको खास बना देते हैं, जिसकी वजह से एक सेलेक्टिव रिडक्शन करेंगे, करते हुए आपको नजर आएगा ये ट्राई आइसोप्रोपॉक्सी, एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप. इसी तरीके से जो दूसरा रो है इसमें देखें कि NaOH कहीं रिडक्शन में इन्वॉल्व होता है, जो कि आपको अल्कोहल या फिर जाके कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकता है. ये क्लेमेंसन रिडक्शन कहलाता है, जिसमें हम कार्बोनाइल ग्रुप को जिंक एमलगम के साथ ट्रीट करते हैं. एमलगम कहते हैं, आपको पता है, ये मरकरी का एक और है, मरकरी मेटल को कहते हैं. सो जिंक मरकरी एमलगम HCl की मौजूदगी में ये क्या करता है, ये कीटोन्स को डायरेक्टली रिड्यूस करता है इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन. तो ये अल्केन बना रहा है डायरेक्ट कीटोन से. इसके अलावा हाइड्रोजीन है, ये NH2NH2, ये आप देख रहे हैं, ये वाला NH2NH2 हाइड्रोजीन कहते हैं इसको. और ये हाइड्रेटेड हाइड्रोजीन NaOH की मौजूदगी में ये भी आपको कीटोन को डायरेक्टली चेंज करता हुआ है इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन. सो ये रिएक्शन आप देखेंगे और इसका मैकेनिज्म हम वन बाय वन इसको देखते हैं कि किस तरीके से होता है. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ द टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन. सो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन असल में क्या चीज है, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एक 5 मेंबर रिंग है, उसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है. अगर आप 5 मेंबर रिंग वो बना देते हैं और इसके अंदर ऑक्सीजन लगा देते हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड एज द फ्यूरेन. उसको करें आप ऐसे 5 मेंबर रिंग बना दें ऐसे. सो यहाँ इसमें ऑक्सीजन लगा होता है, आपका यहाँ पे ऑक्सीजन लगा होता है. सो दिस इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन. इसका काम क्या होता है, क्या फंक्शन होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में. जैसे मैं आपको बताया कि या BH3 सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, तो इसमें जब वो निकल जाता है एक हाइड्राइड एल्यूमिनियम में से, तो फिर एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है, AlH3 रह जाता है ना. तो AlH3 को एक फॉर द टाइम बीइंग इसको यहाँ से ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन की, इसको स्टेबलाइज करते हैं.
सो एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कह ले, या एक इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है लिविस एसिड बेस का, जिसमें जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स है वो स्टेबलाइज करता है BH3 को या ALH3 को। ये आगे मैकेनिज्म में आप देखेंगे इसको कि किस तरीके से इसका रोल क्या है। जो THF है, टेट्राहाइड्रो फ्यूरेन, टेट्राहाइड्रो इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन वो लगे होते हैं ना, टेट्राहाइड्रो, 4 हाइड्रोजन इसमें वो लगे होते हैं, इस वजह से इसको टेट्राहाइड्रो फ्यूरेन कहते हैं। इसमें आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है कि नहीं होता, 4 ही हो जाएंगे ना ऐसे, यहाँ पे 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो फ्यूरेन, फ्यूरेन रिंग होता है। फ्यूरेन अच्छा आगे हम देखेंगे इसको, आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या है किस तरीके से। आगे इसका एक रिएक्शन भी दिया है इन्होंने। सो ये है इसका कि किस तरीके से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर है तो वो कैसे, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हाइड्राइड है और ये ALH3 है। सुन, ये इससे घबराना नहीं चाहिए आपको कि ये क्या चीज है, ये ALH4 है एक्चुअली। ये पूरा की पूरा अगर आप देखें तो दिस इज ALH4। ये क्या चीज है, ALH4। ALH4 ये वाला जो ये वाला ये है ALH4। सो ये ALH4 को उन्होंने अरेंज किया है इस तरीके से कि इसमें ALH3 एक साइड पे है और हाइड्रोजन को दूसरी साइड पे किया है। अब क्या है, ये वाला हाइड्रोजन हाइड्राइड की सूरत में कार्बन पे अटैक करता है, जबकि ALH3 जो है वो ऑक्सीजन की O नेगेटिव के साथ लग जाता है। सो ये इस तरीके से, ये आप देखें, ये आप इस तरीके से देखिए कि हाइड्रोजन इधर लगा और ALH3 जो है वो इधर लगा। सो ये एक इंटरमीडिएट बना देता है जो कि उसके बाद इसका वर्कअप होता है और ये आगे OH पकड़ के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना देता है एसिड वर्कअप के बाद। इस तरीके से हम इसके आप डिटेल इसका पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या बता रहे हैं। सो इस पूरे चैप्टर में आप इसका हर एक चीज का एक पूरा डिटेल दिया हुआ है, एक एक स्टेप को बताया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसमें फिर भी कोई डिफिकल्टी है आपको कोई अंडरस्टैंडिंग में, वो आप डिस्कस करें। यहाँ पे आप देखिए कि देखिए ये है जब अल्कोहल के साथ ये ALH3 2 मॉलिक्यूल लग जाते हैं, किस तरीके से इन्होंने सराउंड किया। अगर आप गौर करें तो ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना देते हैं। ये आपको लग ही रहा है कि ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। एक साइड पे है ALH3 और एक साइड पे है O, Li लगा हुआ है और फिर 2 ये अल्कोहल लगे हुए हैं, कीटोन लगे हुए हैं। देखिए ये देखे ये दूसरा है, ये है ALH3। सो ये ALH3 है और यहाँ पे एक और अल्कोहल, तो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना देते हैं। सो ये बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है कि किस तरीके से ALH4 जो है एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना देते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चीज जो है वो गैर वाज़ेह है। ALH3 है, ये ऊपर देखिए, और ये क्या है Li क्या करता है कि एक बीच में एक देखिए ये इन डॉटेड लाइन के साथ शो किया है। तो एक साइड पे ये 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़े रखता है, ये दूसरा ये तीसरा, और यहाँ पे ALH3 है और ये एक ग्रुप लगा हुआ है। आगे थोड़ा सा ये और वाज़ेह हो जाएगा जिसमें कैसे ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप को इन्होंने A को एक्सपेंड किया है, तो वो उसका फिर क्या रोल है, वो किस तरीके से मैं भी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ये और वाज़ेह हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे आप देखिए कि ये है ALH3O, यानी और O के साथ ये क्या चीज है, अगर आप लोग मुझे बता सके तो। ये इससे आप लोग घबराएंगे मुझे लगता है, ये क्या चीज है, ये अभी आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगी ये क्या चीज, ये वाली क्या चीज। तो मेरे ख्याल में आप लोग शायद समझ गए होंगे, ये है वो वही जो आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप है। अगर मैं
एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्राइड की जगह एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकूं किस चीज में, आइसोप्रोपोक्सी ग्रुप के साथ। सो आइसोप्रोपोक्सी ग्रुप अगर आप मजीद एक्सपेंड करना चाहें तो इसको कैसे आप लिख सकते हैं, इसको आप यूं लिखेंगे ना कि ये कार्बन बीच में होगा, ऐसे लिखेंगे। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बीच में ये कार्बन हो गया, ये वाला ये कार्बन, इसके साथ एक R इधर, ठीक है जी, और दूसरा R हो गया इधर, ये दूसरा R हो गया, R2 हो गया। R2 का मतलब कि 2 R हो गए। एक इसके साथ ये हाइड्राइड लगा हुआ है, ये H लगा हुआ है, देखिए ये H लगा हुआ है एक इसके साथ, और एक जो है ये ऑक्सीजन। सो इस पूरे ग्रुप को मैं क्या कहूंगा, इस पूरे वाले ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को मैं कहूंगा आइसोप्रोपोक्सी ग्रुप। जिस तरह आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, अगर उसमें एक ऑक्सीजन का इजाफा किया जाए तो आइसोप्रोपोक्सी ग्रुप होगा। सो इस आइसोप्रोपोक्सी ग्रुप ने किया क्या है कि इन्होंने जो AlH4 होता था, AlH4, ये AlH4 के 4 हाइड्रोजन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सके, ये 4 हाइड्रोजन थे पहले, ये 4 थे, तो इन 4 में से अगर एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सके किसी तरीके से, किस चीज के साथ इसको हम रिप्लेस कर सके, आइसोप्रोपोक्सी ग्रुप के साथ, सो फिर ये वाला आइसोप्रोपोक्सी ग्रुप होगा। सो आइसोप्रोपोक्सी ग्रुप को फिर हम क्यों कैसे लिखेंगे, इसको हम फिर यूं लिखेंगे Al, ये हो गया AH4, यूं AlH3 सॉरी, और इसके साथ ये O, ठीक है जी, और यहाँ पे क्या होगा, H होगा, सॉरी ये C है ना, सॉरी O है, C है, सॉरी O है ना, O है, किसी O है। सो ये हो गया C आपका, और यहाँ पे हो गया R, और इधर हो ये है R, और ये दूसरा R, ठीक है जी, और यहाँ पे है आपका H। सो अभी आपका क्या होगा कि आपका ये वाला H यूज होगा, ये जो H है ये वाला, सो ये इन्वॉल्व होगा किस चीज में, ये अभी कैसे इन्वॉल्व होगा, जरा इसका मैकेनिज्म देख लिया जाए। ये जो हाइड्रोजन है ये किससे मर जाएगा, जब ये हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा किसी दूसरे, सपोज मैं कोई दूसरा कीटोन है मेरे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास एक है कीटोन, ऐसे एक कीटोन है C+O, और यहाँ पे भी कोई R3 है, ये R3 हो गया, और ये है R4। अब क्या होगा इसमें, अब इसमें होगा ये मैकेनिज्म को जरा देखें कि ये हाइड्राइड जो है इसका बॉन्ड, ये हाइड्राइड जाएगा, ये किधर जाएगा कि जब, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें जरा देखें, सो AlH3 है, ये AlH3 है ये, और यहाँ पे ये क्या है, ये H लगा, ये है। अब ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन क्या करेगा, ये जब इधर अप्रोच कर देगा उसके ऊपर अप्रोच करेगा एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरफ, सो उसमें फिर क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि ऐसे जरा एक वाज़ेह बना दे इसका, ये जो ये इधर आप देखें कि ये इधर अटैक जब करेगा ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड है एल्यूमिनियम और उसके ऑक्सीजन के दरमियान, ये शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होती ही ये जो H है, ये वाला, ये जो H है, ये जो H लगा हुआ है, ये H हाइड्राइड की सूरत में ये चला जाएगा, इस कार्बन के ऊपर लग जाएगा, और इस कार्बन के लगते ही ये O नेगेटिव हो जाएगा ये ऊपर, और ये जब O नेगेटिव हो जाएगा ये AlOH को भी पकड़ सकता है उधर ऊपर जाके, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को पकड़ सकता है, और ये स्टेबलाइज हो जाता है फॉर द टाइम बीइंग।
सो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म है कि किस तरीके से हम ALH3 में जब हम आइसोप्रोपोक्सी ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं, उस आइसोप्रोपोक्सी ग्रुप का ये वाला हाइड्रोजन एक्चुअली जो कि इन्वॉल्व होता है हाइड्राइड, जो कि हाइड्राइड की सूरत में शिफ्ट हो जाता है कमिंग कीटोन के ऊपर और उसको रिड्यूस कर देता है। सो ये एक मैकेनिज्म था इसका, और ये नीचे दिया गया है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से इसको समझाया गया है जो कि आप देख सकते। यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने वाज़ेह तौर पर इसको बना दिया है, सो आपको कोई भी इसे घबराने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से इसको करके BH3 लगा दिया लेके आप, और एक कीटोन है, कीटोन के ऊपर एक किस तरह जा रहा है और BH3 का हाइड्राइड, सो एक दूसरा मॉलिक्यूल इन्होंने यहाँ पे बना दिया है। नीचे भी इस तरह के बहुत सारे रिएक्शन उन्होंने रिपीट किया है यही बार बार। अब देखिए THF, देखिए इधर नीचे दिया हुआ है ये। सो सेम रिएक्शन एक दूसरा एग्जांपल उनको कराया गया है, जिसमें आप इस वाली चीज को जरा देखिए, इससे शायद आप लोग घबराते हुए कि BH3 है, ये क्या चीज है, ये B2H6 है ना, ये जो है ये B2H6 है और क्या है, और इसका BH3 के इसमें THF है, ये देखिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, सॉरी। सो इस टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में अगर आप देखें कि इस टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का जो ऑक्सीजन है उसका क्या रोल होता है, कि ये इसका ये रोल है। देखिए इन्होंने क्या किया, ये BH3 को इन्होंने अलग किया है, ये B2H6 जो कि डायमर होता है BH3 का, इनको अगर हम 2 से ज़रब दे दे, देखिए इधर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये डायमर है जो कि एक्चुअली B2H6 है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस, हमारे समझने के लिए इन्होंने क्या किया है कि इसको 2 से ज़रब दिया है, जो कि अब उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि ये वाली जो चीज़ है, अब देखिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये कोशिश कर रहा है इसकी डिफिशियंसी को ओवरकम करने की BH3 की। तो इसी वजह से हम इसको डॉट की सूरत में ऐसे लिखते हैं, BH3.THF, जो कि कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पे आप देखिए इसमें अब क्या चीज मुश्किल है कि कार्बोनाइल उन्होंने R2C बनाया, ये क्या है, कीटोन है, ये क्या है, कीटोन है, और इस कीटोन का के ऊपर B2H6 कहाँ पे लगता है, इधर लग जाता है, और जो हाइड्राइड होगा जाहिर है वो इधर इसके साथ लग जाना है। सो जाके उन्होंने जाके कीटोन अल्कोहल बना देना है, ऐसे ये मैकेनिज्म इन्होंने समझा दिया है, और आगे जाके इन्होंने ऐसे B2H6। अब बारी बारी आप देखें कि होता क्या है कि ये हाइड्रोजन 2 मजीद ये और भी रिप्लेस हो जाएंगे ना, तो इस तरीके से कर करके ये हुआ क्या है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो कि पिछले सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वही रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का एक स्टेप है एक्चुअली। क्या स्टेप है, अब देखिए कि पहली दफा में क्या हुआ है कि कीटोन यहाँ से चल पड़ा था जो कि BH3 के साथ रिएक्ट हुआ था, और ये BH3 इधर लग गया, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी बात ये कि फिर ये हाइड्राइड शिफ्ट हो गया इसके ऊपर और हमारे पास ये इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। अब तीसरी स्टेप में क्या होता है कि जो 2 मजीद हाइड्रोजन है इसके, ये बारी बारी सेम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, जिस तरीके से एक और अल्कीन इधर आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा, इधर 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 एक कीटोन आ जाएगा, और वो कीटोन मॉलिक्यूल इसी तरह से BH को आप बढ़ा के वो मजीद एक रिएक्शन कर जाएगा, फिर ये 2 में से एक हाइड्रोजन रह जाएंगे इधर, तो वो एक हाइड्रोजन भी जाके फिर क्या करेंगे, वो भी रिप्लेस हो जाएगा। सो इस तरीके से कर करके आपके पास 3 BOR ग्रुप लग जाएंगे। तो अगर मैं इसको सिंपल करूं तो मैं कह सकता हूं क्या कि ये अगर इसको ग्रुप को क्या मैं OR ग्रुप कह सकता हूँ, OR ग्रुप। इसका मतलब ये है कि बोरॉन के साथ एक OR ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप एक और BOR ग्रुप हो जाएगा, तीसरा एक और BOR ग्रुप हो जाएगा। सो तीनों मिला के मेरे पास 3 BOR ग्रुप हो जाएंगे। उन तीनों BOR ग्रुप जो कि एस्टर होगा, उसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में आपको पता है कि OR ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा OH ग्रुप के साथ। सो एज अ रिजल्ट मेरे पास क्या चीज बनेगी, 3 BOH3 बनेगी। सिंपल है, 3 BOH3 बनेगी। और BOH3 कैसे बनेगी, क्योंकि हाइड्रोलिसिस जब आप करते हैं, ये पहले क्या था BOR होल 3 था, तो इसको मैं अगर लिख सकूं इंद्रा, यहाँ पे इन्होंने
एक स्टेप को इन्होंने छोड़ दिया है, जो कि आप लोग वो लोग समझते हैं कि शायद आप लोगों को ये चीज आती है। सो ये स्टेप था कि बी यहाँ पे ब्रैकेट, और उस ब्रैकेट में अगर मैं लिख सकूं इधर ओ इधर आर, BOR होल 3, और ये OR3 क्या चीज है, ये यहाँ से चल पड़ा था, क्योंकि एक जब ये रिएक्शन होगा एक दफा में होगा, दूसरी दफा में यही रिएक्शन इधर से जो चल पड़ा है पूरा, ये फिर दूसरा रिएक्शन भी दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तीसरा हाइड्रोजन तीसरे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन हाइड्राइड को रिप्लेस कर देगा, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेंगे, BOR होल 3 बनेगा। इस BOR होल 3 की जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस का मुराद ये है कि जब हम एसिड और वाटर के साथ इसकी हम रिएक्शन करेंगे तो एक साइड में ये OH लग जाएगा जो कि अल्कोहल बना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अल्कोहल बना है, तीन मॉलिक्यूल बने हैं, और दूसरी साइड पे एक BOH3 बनेगा हमें, क्योंकि ये R रिप्लेस हो जाएगा किस चीज से, H से रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास ये 3 BOH3 बन जाएगी। तो ये इन्होंने किया हुआ है स्टेप, देखिए अगर आप, मेरे ख्याल में किया भी है इन्होंने, ये रहा ये वाला स्टेप इन्होंने असल में यहाँ के बाद इन्होंने कंटिन्यू किया है यहाँ तक। तो ये इनका स्टेप है, फिर उसके बाद ये होता है हाइड्रोलिसिस हो गई, और आखिर में आपके पास क्या हो गया, 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल बन गए। तो ये इसका सिंपल, इसको कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इंतहाई इजी है, इसकी मैं लिंक्स भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, इसकी मैंने यूट्यूब वीडियो भी आपके साथ शेयर किया है जो कि आप देख सकते हैं अपने पिछले लेक्चर में, जिसमें मैंने हाइड्रोबोरेशन की बात की थी। सो वो आप देख सकते हैं उधर से। इसमें मजीद कुछ रिएक्शंस है इस तरह से, देखिए मजीद ये दोबारा वही रिएक्शन किया गया है, एक डबल बॉन्ड है, फर्क सिर्फ इतना था कि उधर वो हमारे पास कीटोन्स था, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड BH3 के साथ रिएक्शन कर रहा है। सो इसमें फिर होगा क्या कि ये जो BH3 है, ये अब देखिए कि ये जो BH3 है, अब देखिए कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड की एक साइड पे एक कार्बन के ऊपर BH3 लग जाता है, एक के ऊपर हाइड्रोजन लग जाता है, हाइड्राइड लग जाता है इस मैकेनिज्म के थ्रू। सो अब फिर होगा क्या कि हाइड्राइड लगती ही ये वाला एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास बनेगा, इसको कहते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। सो इसमें फिर क्या होगा कि एक के ऊपर बोरान लग जाएगा, एक के ऊपर हाइड्राइड लग जाएगा। तो नेक्स्ट फिर ये होगा कि वो दोनों लग के और ये इसका वर्कअप हो जाएगा और ये अलग हो जाएंगे, और आपके पास डबल बॉन्ड जो होगा वो सिंगल बॉन्ड में चेंज होता जाएगा। आगे कैनोजोरस रिएक्शन है इसकी। तो कैनोजोरस रिएक्शन एक्चुअली इसमें एक स्टेप है जिसमें रिडक्शन होती है। कैसे होती है रिडक्शन, देखे कि ये हमारे पास एक दो हम लेते हैं अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल इसमें। तो अल्डिहाइड में सबसे पहले जब NaOH का अटैक होता है अल्डिहाइड के ऊपर तो ऑक्सीएनाइन बनेगा, ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगा। जब OH का अटैक होगा यहाँ से ना, यहाँ से अटैक होगा इसके ऊपर, जब अटैक होगा तो जाहिर है कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर ON नेगेटिव बन जाएगा। वो O नेगेटिव के ऊपर फिर क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, ये जो मैं अगर आपको दिखा सकूं, ये जो हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, क्योंकि ये ऑक्सीएनाइन है, जब ये रिवर्स में जाएगा, OH आ गया, दोबारा ये रिवर्स जाएगा तो ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, और वो हाइड्राइड यही एक दूसरा मॉलिक्यूल इसी का ले ले, यानी एक दफा में मैंने ये मॉलिक्यूल लिया है पूरा, दूसरी दफा में एक फिर यही मॉलिक्यूल ले ले, सो वो क्या करेगा, उसको रिड्यूस कर देगा और इसको इस फॉर्म में चेंज कर देगा। ये कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको जरा नीचे देखिए कैसे किया इन्होंने। ये पूरा की पूरा इन्होंने यहाँ पे समझा दिया है, जो कि बहुत ही इजी है समझने में। कि सबसे पहले ये NaOH का OH आ गया, इधर कार्बोनाइल पे अटैक किया, हमारे पास ONine बन गया ये, ठीक है जी, ये ऑक्सीएनाइन बन गया। और ये ऑक्सीएनाइन का अब क्या हुआ कि यही मॉलिक्यूल, इसके हमने दो इक्विवेलेंट लेने हैं। एक इक्विवेलेंट क्या करेगा कि वो ऑक्सीएनाइन बना देगा, और दूसरा मॉलिक्यूल इसी का वो फिर क्या करेगा, अल्डिहाइडिक फॉर्म में ही रहेगा, और जब ये ऑक्सीजन दोबारा अपनी कार्बन की तरफ से आएगा तो ये हाइड्राइड की सूरत में इस पे शिफ्ट हो जाएगा दूसरे अल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ऊपर।
सो हमारे पास एक नतीजे के तौर पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और दूसरा हमारे पास एक अल्कोहल बनेगा आफ्टर द वर्कअप। वर्कअप से मुराद के हाइड्रोजन जब एसिड से ले लेंगे तो ये अल्कोहल बनेगा। तो अब मजीद यही जो पिछला रिएक्शन मैंने समझाया था आप लोगों को, वही चीज इन्होंने रिपीट किया है और इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नाम भी है। इसको कहते हैं मेरवीन पॉन्ड्रफ रिएक्शन, मेरवीन पॉन्ड्रफ वेल्रे रिडक्शन इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यही मॉडिफाइड किया है इसको, जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड का था उसकी जगह पे 3 या 4 आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप आ गए। ये क्या चीज है ये पूरा, अगर आप लोग मुझे बता सके जरा, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, इसको आसानी से आप बता सकते हैं मुझे कि ये क्या चीज है ये। इसमें ये देखे, हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर देख के अक्सर घबरा जाते हैं, हालांकि वो कुछ भी नहीं होता, बस वो क्या होते हैं थोड़े बहुत चेंजेस किए होते हैं उन्होंने। ये वही एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। देख एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह पे उन्होंने क्या किया है कि 3 आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप उसमें रिप्लेस किया ना, 3 हाइड्रोजन को। ये एक आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ये दूसरा लगा हुआ है आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप, ये जो दूसरा लगा हुआ है एक आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप है, और ये तीसरा आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप। इस तरीके से इन्होंने 3 आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप लगा दिए इन्होंने। अब क्या किया, चौथा जो है वो कीटोन लगा हुआ है जिसको उन्होंने रिड्यूस कर देना है। तो वो कैसे किया है, अब इसमें अगर आप गौर करें, अगर आप ये गौर करें कि अब होगा क्या कि 3 आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला। एक को इन्होंने एक्सपेंड किया है, उसका हाइड्रोजन इन्होंने शो किया है, जिस तरह ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन। इसका क्या किया है इन्होंने, अटैक किया हुआ है इन्होंने कार्बन के ऊपर। तो ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद ये जो बॉन्ड है इस पे शिफ्ट हो जाएगा और इसका बॉन्ड यहाँ से ये टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड, और ये एल्यूमिनियम पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नतीजे के तौर पर क्या हुआ है, ये रिड्यूस हो गया इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल। इसको कहते हैं मेरवीन पॉन्ड्रफ रिडक्शन रिएक्शन, जो कि अपोजिट टू द ओपन और ऑक्सीडेशन। So with this we come to an end of this lecture today. So हमने काफी सारी चीजें इसमें डिस्कस की है। मैंने इसमें कोशिश ये की है कि एक तो हमने मीडियम को चेंज किया है, हम पावर सॉफ्टवेयर पे आ गए जो हमारे यूनिवर्सिटी ने हमें सजेस्ट किया है। दूसरी बात यह है कि मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश की जगह पे ज्यादातर मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए बात जो है वो आम फहम हो। और तीसरी चीज ये कि हर एक चीज को हम यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये भी आया है कि हम मैकेनिज्म को एक ही को हम डिस्कस कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं। सो ये था आज का लेक्चर और इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे और इस दौरान आपका जो भी सवाल होगा यू आर मोस्ट वेलकम। आई होप कि आप लोग ये चैप्टर नंबर 17 रॉबर्ट एंड न्यूमैन बुक का और चैप्टर नंबर 19 जो कि एक ही चीज है, उनमें काफी ज्यादा चीजें कदर मुश्तरक है। सो आपने टॉपिक वाइज चलना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज है, कोई भी डिफिकल्टी है, उसको हम एक नहीं दो नहीं बार बार हम उसको डिस्कस कर सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर मोस्ट वेलकम और इसको हम इंशाल्लाह पूरा की पूरा सीख लेंगे। मैं मटेरियल भी आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करूंगा, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। So with this we come to an end of this lecture. Thank you very much and have a great day.